Okay. Okay, Ankit, we can begin. Namaskar. Yeah. Namaskar. My name is Ankit, and I welcome you all to episode 9 of our weekly session, Satyagrah. Now, before starting, I would like to invite Mr. Bharat Gandhi to pay his tributes to the laws of the great social reformer, Mr. Swami Agnivesh. So I request Mr. Bharat Gandhi to speak a few lines on Swami Agnivesh. Thank you, Mr. Ankit. In fact, Swami Agnivesh ji was the real statesman in real sense in the India, and he passed his complete life with principles without any deviation. He was a real humanist cosmopolitan, and he dedicated complete life for the have-nots. He was a parliamentarian for a few years representing Haryana. Basically, he was from Telugu language. He studied Hindi and English well. He was working for the world government and especially for the belief in one God. If one God, he was generally arguing that if there is one God, then why there is many states? His powerful logic was accepted in whole world. But in spite of accepting the powerful logic, his solutions, his suggestions, and his prescriptions were not accepted in the world because of the mentally the world is very backward position, and also the state machinery in the language of the Professor Green, the state machinery is immature. So the Swami Agnivesh like people are not understood, are not absorbed in the present state machinery. So it is the best tribute to Swami Agnivesh ji to restructure our state as per the requirement of the humanity, as per the requirement of the 21st century, especially the definition of citizenship, the definition of sovereignty, the definition of democracy, and the definition of state itself should be redefined. And today, if we will work in these lines, then it will be the best tribute for Swami Agnivesh. Thank you. Now I request Prem Verma to speak a few lines on Swami Agnivesh. Prem Verma over to you. Yeah, I had occasion to meet Swami Agnivesh ji 3-4 occasions. Once we were in Jantar Mantar and Medha Patekar had announced a sit-in there, and he had come to address. I remember this is about almost must be 10 years back, 10, 12 years back. And he mentioned the fact that he told Medha Patekar in the meeting itself that you have been struggling for so many years on your Narmada Bachao Andolan and other issues. And every time the government gives you a little bit and you all think that the progress is there. And that way, years go by and you don't get what you want exactly. And I think we need to change some of our tactics on that issue. Then, of course, later on, I met him even in the Singur Andolan in West Bengal, where I was living in Calcutta at that time. But the real, I think, touch I came to know him was when he came to Jharkhand a couple of years back, and he had
he was attacked in Jharkhand, because of which he suffered the injury that has ultimately led to his death. And we were very worried that a person like him could be attacked in Jharkhand. And so we scheduled a protest meeting about a month or 2 months later, where he came and we assured him that not only we will give him full protection, but we will make sure that he can speak what his mind, even if it is against the government. And he came along with Medha Patkar and Prashant Bhushan and some others, and we had a huge rally in his support. And I'm very happy to say that the Jharkhand government of that time, it was a BJP government, the police gave us a total protection, over protection rather, I would say. I mean, it's like almost like a Z category protection for Swami Agnivesh during that period. He was very forthright in his speech. He said, "I am not afraid. Even if I am beaten, I'll come back again and again and again." And the simplicity of his life and the way he carried himself, talked down to earth, connected with people, is something that we all admire. And I was very shocked to hear that he suddenly passed away a couple of days ago. And we feel guilty because the death, as they are saying, is connected to the beating that he got in Jharkhand. And we didn't realize that it was so serious. If we had realized it was so serious, then we should have taken, or we would have taken some medical precaution. Unfortunately, he is no more. I have seen him also in the initial stages of the AAP party formation, Ramlila grounds. And every time I met him, I was very impressed with the clarity of his views, and also very down to earth. I mean, there was no pretense. If he had to walk miles, he could walk miles, and he was an inspiration and very strong belief in whatever he believed in. And may God bless his soul. We all pray for him. We have lost a very great leader. Already such great leaders are fewer in number now, and we'll miss him, and we pray for his soul. Thank you. Thank you, Prem Vermaji and Bharat Vermaji, for sharing your personal anecdotes. And I believe that his contribution, his principle, his life will continue to inspire the social and environmental reformer. Now, अंकित खजूरिया जी हैं, जरा मैं चाहता हूँ खजूरिया जी भी दो शब्द स्वामी अग्निवेश जी को श्रद्धांजलि व्यक्त कर दें। खजूरिया जी, स्वामी अग्निवेश को श्रद्धांजलि व्यक्त कर दीजिए। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। मैं स्वामी जी से 2009 की इलेक्शन के बाद उनके दफ्तर में ही मिला था। उस वक्त ये मीटिंगें चल रही थी लोक राजनीति की, कि क्या हुआ। वो मेरे विचारों से मुझे काफी उत्साहित करते थे कि आप जो सोचते हो इंटरनेशनलिस्ट थे तौर होने के नाते, और ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में जो आप सोचते हो, यही एक रास्ता है। और मैं उनसे बड़ा प्रेरणा पाता था। और कभी कभी वो मेरे से जम्मू कश्मीर की वो ब्रिक किलन मजदूरों की वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे कि वहाँ उसमें जाना कठुआ के पास है या कहीं दूसरे। तो मैं एक दो बार उनका वो उनके कहने के मुताबिक मैं गया भी, और जो मेरे से होता था वो मैंने किया। और वो डाउन ट्रॉडन के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे, ब्रिक किलन वर्कर्स के लिए बड़े फिक्रमंद रहते थे। और दूसरा वो उनकी जो गहराई थी इंटरनेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में, वो बहुत ही एक सराहनीय थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली दुनिया में जो जिस तरफ हमने पोस्ट कोविड के बाद देखा है कि आज जो अंतर्निर्भरता बढ़ रही है, और जो हाल हुआ है इस सिस्टम का, उससे यही निकलता है कि हमें आज एक विश्व सरकार की, जो उनका भी सपना था कि वो बनना चाहिए और विश्व के तौर पर इंसानियत और प्रकृति को बचना चाहिए। ये मैं समझता हूँ उनको श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है
हमें उस पर चलना चाहिए। धन्यवाद। अंकित, अब आप शुरू कीजिए। Hello. Hello. Yeah, you can start, Ankit. Yeah. So thank you, Ishwarji. It's always good to hear personal anecdote, and we all will miss Swami Agnivesh. Now let's start a session. So the session is on Satyagraha, and the title of today's session is Climate Crisis and Agriculture. Satyagraha, if you analyze carefully, Satyagraha is comprises of two words. Satya, meaning truth, and Graha means politeness, means determination, something to hold to. Now, if you look in the past, Satyagraha was instrumental in obtaining independence from the Britishers. Even Martin Luther King, when he was fighting for the civil rights, he was greatly influenced by Satyagraha. If you speak about Nelson Mandela, when he was fighting against apartheid, he too was greatly influenced by Satyagraha. Satyagraha is a powerful tool which is essential to fight against any injustice. And if we look at today's status quo, there is social, political, and environmental injustice almost in every corner of the world. Now, if we look at the root cause, what is the root cause of this injustice is in this oppression, we will find that it is because of our unconscious choices and somewhat conscious choices like consumerism. And this is affecting our life forces. This is affecting the food security. This is affecting the water resources, making them more scarce. And this is affecting the breathable air. Now we are organizing these sessions to make the masses more informed about their actions, to provide a platform to the ignored, to the unheard, and if possible, to find an optimal resolution for the same. Now, to complete the same objective today, we are organizing this session on climate crisis and agriculture. And to speak more about it, we have with us Dr. Shirikumar. And let me introduce Dr. Shirikumar. Dr. Shirikumar, he is a chemical engineer. He did his chemical engineering from Regional Engineering College, Karnataka, which is now known as NIT Karnataka. And after that, he did a brief stint in ONGC. Then he pursued for his master's from the prestigious Indian Institute of Science, Bangalore. He founded Sangatya Commune in 2007, and the principle behind is to make a model for sustainable practices, to preach sustainable practices to the individuals, to promote equal share of resources. So I would request Dr. Shirikumar to speak more about today's topic. Over to you, Dr. Shirikumar. Thank you, Ankit. Will you allow me to share screen? I think you have to enable it, otherwise. Yeah, actually here, see, I've come to a cyber cafe because the network connectivity at my place is really very, very poor. And here also, because so many people are using, sometimes it says network is slow. So it will be better if all of you keep your videos off. Can you hear me? Yes, we can hear you, and I request the same to for everyone to please turn off their videos and their mic. Yeah. Please continue, Dr. Shirikumar. Okay, okay. So good evening to all of you. I'm very glad to be speaking to you today. And in this Dr. Shirikumar, your Yeah, voice is yeah. not audible. Okay. Yes. See,
the title of the talk, as Ankit said, is Climate Crisis and Agriculture. But what I want to cover here is impact of climate crisis on agriculture, as well as the role of agriculture in tackling the crisis. And the audience is quite mixed, so a lot of people may be knowing a lot of what I'm saying, but I feel there are some people who need it from the basics. Moreover, my presentation, the slides are in English, so as to reach a bigger audience, I will be speaking both in English and Hindi, but I'll be speaking more in Hindi. And my Hindi is okay, possible. If there are mistakes, I think you will forgive me. So this will be the outline of my talk. First, I'll say some facts about climate crisis, then its impact on agriculture and particularly on Indian agriculture, then how bad agricultural practices have also contributed to climate change, and what steps are required. In these steps, there are some things which we can do without even depending on the government, but there are some things for which government support is necessary. So one thing is trying to tackle climate crisis. The other one is building resilience. So I will speak something about this, and at the end, I would like to say something about Cuba's example, how it faced with a similar crisis, not exactly climate crisis, but a similar crisis, acted on it with so much urgency. That is when the Soviet Union collapsed. So they became self-reliant in a matter of 5 years. So that is an example from which all of us can learn. That is why I want to say that. Okay. So अभी मैं हिंदी में बोलूँगा. तो क्लाइमेट क्राइसिस के कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं पहले बोलना चाहता हूँ. अभी तक औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 2.5 सदियों में धरती का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है और अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. और वैज्ञानिक कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो हमारे लिए खतरनाक है. लेकिन वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम पार कर ही पाएंगे. उसको हम we cannot stop it from rising above 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी तो हमारा टारगेट ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है बोल सकते हैं हम. और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टारगेट हम अगर मीट नहीं कर पाएंगे तो वो रनअवे ग्लोबल वार्मिंग में हो सकता है. रनअवे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है कि अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करेंगे और अभी हमारे लिए थोड़ा समय है उसको कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बढ़ने देते हैं. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन शून्य करने पर भी ग्लोबल वार्मिंग चालू रहेगा, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा. और ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लिमिट करना है तो हमारा नेट एमिशन 20 साल में शून्य होना चाहिए. नेट एमिशन शून्य होने का मतलब ये है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं वायुमंडल में, उतना सब पेड़ पौधे अगर ले सकते हैं तो वो नेट शून्य हो गया. जितना पेड़ पौधे ले सकते हैं उससे ज़्यादा हमें एमिट नहीं करना चाहिए. लेकिन उसका ये भी मतलब होता है जितना फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस धरती में है, उस अभी जितना हमें मालूम है उसके रिसोर्सेस, उसका 80% हमें निकालना ही नहीं चाहिए, धरती के अंदर ही छोड़ना चाहिए. लेकिन अब भी हमारा फॉसिल फ्यूल यूज जो है वो बढ़ रहा है. इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बढ़ रहा है. तो ये सिर्फ 20 साल हमें समय है इसको शून्य करने के लिए. इसीलिए हम इसको क्राइसिस कह रहे हैं. क्राइसिस इसलिए भी है कि हमारी व्यवस्था अभी इस पर इतना निर्भर हो गया है कि हम उसको इतना मालूम होते हुए भी कंट्रोल में लाने के लिए एक सहमति लाने में सफल नहीं हो रहे हैं. हाँ, तो ये क्लाइमेट चेंज एक न्यूट्रल शब्द है,
लेकिन हम क्लाइमेट क्राइसिस कहते हैं, उसमें मालूम होता है कि ये सचमुच खतरनाक है। इसीलिए हम आजकल क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट क्राइसिस कहते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण यानी ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे क्लाइमेट में किस किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, इसी को तो हम क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस कहते हैं ना। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, वो पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा इंटेंसिटी से होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा बारिश या बारिश नहीं होना, या बड़े बड़े तूफान, इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना, पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं और पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं। और इसमें कुछ जगह में ओवरऑल रेनफॉल भी कम हो सकता है, और उसमें बहुत कभी कभी ज़्यादा यानी बढ़त या कमी हो सकता है। बाढ़ और अकाल ये सब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकता है। और इसमें भी कभी कभी कुछ जगह में ऐसा भी हो सकता है कि साल के कुछ समय में बहुत ज़्यादा पानी और साल के कुछ समय पानी नहीं है। और ये खेती पर इसका क्या असर हो सकता है? तो ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण कुछ प्रजाति के जीव के हैबिटेट्स शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल तापमान जो है ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो ये शिफ्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब अब ज़्यादा ऊंचाई पर हो रहा है। सिर्फ ये नहीं, कुछ स्पीशीज तो गायब भी हो सकते हैं। गायब हो सकते हैं तो एक तो हमारे सभी जीव में परस्पर अवलंबन है, तो कुछ गाय होने के कारण बाकी को भी खतरा हो सकता है। सिर्फ ये नहीं, ये वार्मिंग के कारण हमारे कुछ खेती में जो हम उगाते हैं उसमें कुछ फ्लावरिंग होने के लिए ठंडी की ज़रूरत है ठंडी के महीनों में, लेकिन वो ठंडी कम होने के कारण फूल कम होते हैं, तो उसमें फसल भी कम होता है। गेहूं इसका एक उदाहरण है। और आम तौर से ये जहाँ हम लोग रहते हैं ट्रॉपिक्स में, जहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ खेती का उत्पादन कम होगा। जहाँ ठंडी ज़्यादा है वहाँ अनुकूल तापमान होने के कारण थोड़ा उपजाऊ बढ़ भी सकता है, लेकिन जितना हमें नष्ट होता है वो जितना लाभ होता है उससे बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल दुनिया में खेती का प्रोडक्शन कम होने वाला है। उसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर बढ़ने के कारण बहुत सारा जमीन समुद्र के नीचे जा सकता है। सिर्फ वो नहीं, हमारे अंतर्जल में भी नमकीन पानी आ सकती है। इसलिए ये सब जनरली एग्रीकल्चर पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन खासकर भारत में क्या हो सकता है। एक तो हमारे यहाँ बारिश मानसून में आता है। मानसून हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीजन है, और मानसून पहले जितना प्रेडिक्टेबल था अभी उतना प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब हमारे अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल में हर बार मानसून अलग अलग तरह रहा है, और वो भी नॉर्मली जिस तरह रहता है उस तरह नहीं है। किस समय हमें ज़्यादा पानी आता है, किस समय कम बारिश होती है, ये सब हम अभी बहुत विश्वास से बोल नहीं सकते हैं। और दूसरा ये है कि उत्तर भारत में, खासकर उत्तर भारत की नदियों का बहुत सारा पानी बर्फ से, हिमालय के बर्फ से होता है। हिमालय में बर्फ कम होने के कारण और ज़्यादा जल्दी पिघलने के कारण कभी कभी ज़्यादा पानी भी आ सकता है नदियों में, कभी कभी कम पानी भी आ सकता है। तो ये वेरिएबिलिटी बढ़ता है। दक्षिण भारत के सभी नदियाँ वेस्टर्न घाट्स में शुरू होते हैं,
वेस्टर्न घाट्स में क्लाइमेट चेंज के असर से इसमें कुछ तो मानव अभी अभी जो कर रहे हैं उसके भी कारण है, यानी पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा करने के लगाने के कारण वेस्टर्न घाट्स के जंगल पर असर पड़ सकता है, और वेस्टर्न घाट्स के जंगल अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, दक्षिण भारत की नदियां पूरे साल बह नहीं सकते हैं, हमारे वाटर सिक्योरिटी पर इसका बहुत असर हो सकता है। और एक है इरोजन ऑफ सॉइल। अभी पिछले 3 साल में वेस्टर्न घाट में और यानी कर्नाटक और केरल में बहुत यानी भयंकर फ्लड्स हुए हैं, और वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। तो लैंडस्लाइड्स होने के कारण क्या होता है कि उस समय उतना ज्यादा पानी होने पर भी वो तुरंत बह के समुद्र में जाता है, तो हमें उसी साल में गर्मी के समय में पानी नहीं रहता है। उससे भी बहुत बड़ा असर ये है कि उतना सारा टॉप सॉइल जा रहा है, टॉप सॉइल जा रहा है तो ये वापस नहीं आता है। सॉइल बनने के लिए तो करोड़ों साल लगे हैं, इस तरह इतने जल्दी टॉप सॉइल जाता है तो वो हमारे सिविलाइजेशन के लिए ही खतरनाक है। इसका इतना सब होने का असर होने का ये भी कारण है कि वेस्टर्न घाट्स में जितना बायोडाइवर्स फॉरेस्ट थे, उसकी जगह में आजकल बहुत बड़े एरिया में कैश क्रॉप्स के मोनोकल्चर प्लांटेशंस है, और यानी जहाँ बहुत पुराने पेड़ थे उस जगह में यंग पेड़ हैं जिसके जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाते हैं, और बहुत सारा क्वारिंग और कंस्ट्रक्शन या रोड बिल्डिंग वगैरह होने के कारण इसमें लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हुआ है। और इसमें हमारे भारत में ये क्लाइमेट चेंज के कारण खासकर चावल और गेहूं के उत्पादन में 20 से 30% यील्ड कम होने की क्षमता है। और कोस्टल एरियाज में जहां मैं भी रहता हूं, यहाँ तो जमीन में ग्राउंड वाटर में सैलिनिटी बढ़ने का चांस है, और कुछ जगह पानी के नीचे जाने का चांस है। अभी ये सब क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर क्या असर है ये हो गया। दूसरा, खेती से भी और यानी बुरे प्रैक्टिसेस से, खेती के बुरे प्रैक्टिसेस से क्लाइमेट चेंज को कितना कंट्रीब्यूशन मिला है। तो हम अभी के खेती में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और मशीनरी यूज करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, और मशीनरी को चलाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस होता है। दूसरा ये है कि खेती के रेसिड्यूज जो हैं कटाई करने के बाद उसको जलाने का भी प्रैक्टिस बहुत सारी जगह में है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। इसके अलावा मीथेन एमिशन भी होता है खेती में। मीथेन एक दूसरा गैस है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे लगभग 25 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग में यानी एक कॉन्सेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जितना वार्मिंग कर पाता है उससे लगभग 25 गुना ज्यादा मीथेन से होता है। और मीथेन एमिशन तो यानी गायों के बेल्स में भी आता है, मैन्योर में आता है, जहां भी एनेरोबिक कंडीशंस में सड़ता है, यानी काफी ऑक्सीजन के बिना कंपोस्टिंग होता है या कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज सड़ता है, वहां मीथेन एमिशन होता है। ये वाटरलॉग्ड खेतों में भी होता है क्योंकि खेतों में मैन्योर होता है तो डालते हैं, उसके बाद पानी रख देते हैं। ये चावल के कल्टीवेशन में ज्यादातर लोग पानी होल्ड करते हैं खेत में, तो उससे भी ये मीथेन एमिशन होता है। जहां बहुत ज्यादा बारिश है, जैसे हमारे यहाँ रहते हैं, कभी कभी खेत में पानी होना हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और ट्रेडिशनली उसी तरह की खेती हुई है। लेकिन चावल
की खेती करने वाले जिस समय बारिश नहीं है तब भी खेत में पानी पंप करते हैं, बारिश के बाद दूसरे सीजन में खेती चावल की खेती करने वाले वहाँ पानी कम पंप करते हैं। आजकल बहुत सारे मेथड्स है जिसमें राइस कल्टीवेशन खेत में पानी होल्ड किया बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा लेबर लगता है, इसलिए पानी रखना लोगों को आसान होता है। तो उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन भी होता है फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक वेस्ट को सॉइल में डालने से, लेकिन इससे ज़्यादा मीथेन का असर है। दूसरा यह है कि बहुत सारे जगह में वाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यानी लार्ज स्केल इरिगेशन के कारण है, कभी कभी ग्राउंड वाटर पंपिंग से करते हैं। जहाँ पानी कम है वहाँ कम पानी मांगने वाली ही खेती ही करेंगे, तो इतना वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। वाटर यूज करने से मीथेन एमिशन भी होने का चांस है बहुत ज़्यादा वाटर रखने से। दूसरा, वाटर यूजिंग के लिए बहुत वाटर डिलीवर करने के लिए बहुत एनर्जी भी यूज करते हैं, उससे भी कार्बन एमिशन होता है। तो ये सब के कारण, ये बुरे प्रैक्टिसेस के कारण सॉइल फर्टिलिटी कम हुआ है। जैसे हम सॉइल फर्टिलिटी के आधार पर खेती नहीं करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इनपुट्स फर्टिलाइजर्स डाल के खेती करते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी वहाँ नष्ट होता है। उसको रीबिल्ड करने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है बाद में। और सिर्फ वो नहीं, वो सॉइल की स्टेबिलिटी भी कम होती है, खासकर हम बड़े बड़े मशीनों से ये प्लाविंग करते हैं तो इरोजन के कारण बहुत टॉप सॉइल नष्ट होता है। वो जैसे मैंने पहले ही कहा है, इस तरह का लॉस को हम कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मॉडर्न खेती में कुछ ही तरह के फसल बहुत सारा उगाते हैं, खेती में भी डाइवर्सिटी नहीं है, और खेती के साथ साथ जो भी दूसरे ज़मीन है उसमें भी डाइवर्सिटी कम है। बायोडाइवर्सिटी हमारे स्टेबिलिटी, हमारे एनवायरनमेंट के स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वो नहीं, मैं बाद में कहने वाला हूँ, ये क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए भी डाइवर्सिटी ज़रूरी है। तो उसमें क्या है, अभी क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं अभी तो सिर्फ खेती के संदर्भ में कह रहा हूँ। बहुत सारे जो है जो हम यानी ट्रांसपोर्टेशन कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज कम कर सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी कम कर सकते हैं, वो सब सभी के लिए है। लेकिन फार्मिंग में क्या क्या कर सकते हैं? एक तो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसके लिए कह रहे हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग जो है वो इससे भी बेहतर है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग सीखना उतना आसान नहीं है। लेकिन यानी नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि प्रकृति का जो सहज प्रोसेसेस है जिससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होता है, उसमें हमारा इंटरवेंशन कम करके हम खेती करेंगे, तो वो नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग का वो कोई प्रोसेस हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं, हर एक इकोसिस्टम के लिए अलग है। तो वहीं पर हमें सीख के वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसमें मेन ये है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्लोज्ड होना चाहिए। फर्टिलाइजर्स के यूज में क्या है, हमें इनपुट्स आता है पेट्रोलियम से, और बाद में उसका वेस्ट कुछ जमीन में जाता नहीं है। हमारे खेती में प्रैक्टिस में वहाँ जो भी उगता है उस जमीन में, वो सब उसी में जाना चाहिए। अभी क्या है, हम खेती में वहाँ से हार्वेस्ट निकालने के बाद जो भी बचता है वो सब उसी जमीन में डालना चाहिए। लेकिन कुछ वहाँ जो उगता है वो तो हम बाहर, उसका फूड जो है वहाँ जो हमें फूड प्रोडक्शन होता है वो तो हम गांव से शहर भेजते हैं, आजकल तो बहुत दूर दूर भी जाता है। और फूड कंजम्पशन होने के बाद मानव का जो वेस्ट होता है वो आजकल वापस उसी जमीन में जाता नहीं है। तो उसके लिए जो है हमारे वेस्ट ट्रीटमेंट शहर में जो होता है वो सब एफिशिएंटली करना चाहिए, उसमें भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको खेती की ज़मीन में रिटर्न करना चाहिए, या शहर में ही
खेती करने में उसको यूज करना चाहिए। लेकिन ये न्यूट्रिएंट साइकिल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, खेती की ज़मीन के साथ हमारे यहाँ जो है, खेती की ज़मीन के साथ कुछ ऐसे भी ज़मीन होता है जहाँ सिर्फ पेड़ हैं, उसमें नेचुरल वेजिटेशन होता है और हमारे लगे हुए पेड़ भी होते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत सारा लीफ लिटर हम कंपोस्ट बनाने में यूज़ करते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर हम खेत में डालते हैं। इस तरह जो जो उस खेत से वापस बाहर जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट भी करते हैं इस तरह। लेकिन बहुत सारे जगह में, यानी जहाँ मैदानी इलाका है, वहाँ इस तरह के पेड़ बहुत कम है। खेत की ज़मीन के साथ ऐसे ज़मीन जहाँ पेड़ है बहुत कम है। खेत की ज़मीन के पास कोई जंगल भी नहीं होता है। लेकिन अभी जो है हम पर्माकल्चर जैसे कुछ होलिस्टिक एग्रीकल्चर करेंगे तो हमारे ज़मीन में कुछ जगह पेड़ पौधों के लिए, कुछ जगह वाटर बॉडीज़ के लिए और कुछ जगह ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए रख के डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल क्लोज करना पॉसिबल है। फिर वो है, दूसरा है वाटर यूज़ इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसका दो राय नहीं है, जितना वाटर चाहिए उससे ज़्यादा वाटर करना यूज़ करना खेती के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लीचिंग से सॉइल फर्टिलिटी कम होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मानसून में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी बहुत ज़्यादा पानी होने से सॉइल फर्टिलिटी एक्चुअली कम होता है। दूसरा यह है कि ये ग्राउंड वाटर अनसस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना तो नहीं ही चाहिए। अभी क्या है, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस में सिर्फ खेत में सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं है, साथ साथ क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी ऑलरेडी नष्ट हुआ है, अभी सॉइल फर्टिलिटी रीबिल्ड करना भी खेती का एक उद्देश्य होना चाहिए। इसमें सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज करना चाहिए। दूसरा यह है कि हमारे इलाके के लिए जो फसल उचित है वही प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कम पानी जहाँ गिरता है वहाँ हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके या लार्ज स्केल इरिगेशन यूज करके वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाएंगे तो वो ठीक नहीं है। यहाँ वहाँ हर एक जगह के इकोसिस्टम के लिए जो क्रॉप सूटेबल है वही उगाना चाहिए और उसमें बहुत वैरायटी भी होना चाहिए। और एक है, हमारे प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में दोनों में कुछ पेरेनियल्स की मात्रा बढ़ाना चाहिए। कुछ सब्जियां भी पेरेनियल है जैसे कुंदरू। और एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ, कटहल एक्चुअली एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। हम एक्चुअली कुछ सीरियल्स को भी कटहल से रिप्लेस कर सकते हैं। कटहल एक ही सीजन में होता है, लेकिन उसको ड्राई करके रख सकते हैं या नमक में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, साल भर यूज कर सकते हैं। इस तरह पेरेनियल से ज़्यादा हम लेते हैं तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जितना ज़्यादा हमारे नेचुरल प्रोसेसेस में इंटरवीन करना पड़ता है उसको कम कर सकते हैं। और कुछ नेचुरली ग्रोइंग एडिबल, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे एडिबल्स होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। वीडिंग में उसको सब एलिमिनेट करेंगे तो बाद में नहीं रहेंगे। और हमारे फूड प्रोडक्शन में डाइवर्सिटी होना चाहिए, हमारे दूसरे वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी होना चाहिए। वो हमारे एनवायरनमेंट के स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो नहीं, हमें ज़्यादा सुरक्षा भी देती है। क्योंकि अगर क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस से एक फसल उतना अच्छा नहीं होता है तो हम सिर्फ वही फसल उगाएंगे तो नष्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे फसल में डाइवर्सिटी है तो उसमें नष्ट कम होता है। उसके साथ साथ हमारे खाने के हैबिट्स में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। मैंने हम जो उगाते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी लाना चाहिए, हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें भी डाइवर्सिटी लाना चाहिए। हम जो उगाते हैं तो हमारे परिसर के लिए जो उचित है वही उगाना चाहिए। हम जो कंज्यूम करते हैं वो भी जो लोकल है वही कंज्यूम करना चाहिए।
इसमें भी हमारे कंजम्पशन में भी पेरिनियल्स की मात्रा बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये है कि आजकल हम पूरे दुनिया में देखेंगे तो हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा पर कैपिटा एनर्जी यूज उससे भी ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन तो कभी स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा अर्जेंसी है, लेकिन हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन, हर एक व्यक्ति जितना रिसोर्सेस यूज करता है, जितना एनर्जी यूज कर सकता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमारे पालतू जानवरों की संख्या भी बढ़ रहा है। यानी जो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ मीट प्रोडक्शन जो है ना, उसमें बहुत बड़ी संख्या में ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं मीट प्रोडक्शन के लिए। तो वो ये इकोलॉजिकली और रिसोर्स यूज की दृष्टि से बहुत ही इनएफिशिएंट है। उतना प्रोडक्शन, उतना मीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना जमीन चाहिए, उस जमीन में अगर हम डायरेक्टली हम जो कंज्यूम करते हैं वो उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इकोलॉजिकली ये यानी हमारे डाइट में नॉन वेजिटेरियन कंटेंट बहुत बढ़ाना अच्छा नहीं है। ये एक्चुअली, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी को वेजिटेरियन करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ट्रेंड बढ़ रहा है ना हमारे फूड हैबिट्स में, नॉन वेजिटेरियन बढ़ रहा है, और खासकर ये बढ़ने का कारण ये है कि इंडस्ट्रियल मीट और मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। वो इकोलॉजिकली भी वो मेथड सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस पर हमारे धरती पर जो इकोलॉजिकल लोड आता है वो भी बहुत ज्यादा है। फिर दूसरे ये है क्लाइमेट चेंज। सॉरी Sorry to disturb you, but you have to please try to wrap it up in 5 minutes. Okay. Because then we will have a question. Okay, yeah. So these are okay, these are obvious. I mean, here I won't explain this. So one thing is policy growth, policy of GDP growth at any cost, profit maximization. This is what is increasing our load on the planet. So that should be given up. So these are the things, you know, what I'm saying now, that policy support is needed for implementing. So अभी के सिस्टम में ऐसा है, लोगों को खेती छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, गांव छोड़ के शहर में जाने के लिए, ये सब बहुत प्रोत्साहन है क्योंकि उसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन ये इम्बैलेंस को, यानी अनफेयर एडवांटेज जो दूसरे सेक्टर्स के लिए है, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो कार्बन एमिशंस के लिए बहुत टैक्सेस लगाना चाहिए। इस तरह के टैक्स के फाइन ट्यूनिंग से खेती ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है और लोग शहर छोड़ के गांव में भी आ सकते हैं। अभी का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी स्थिति में आया है जिसमें ग्रोथ लगातार होता रहा है। अभी हमें एक्चुअली दुनिया में ये क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस को हमें टैकल करना है तो ग्रोथ के लिए स्कोप नहीं है, हमें डी ग्रोथ चाहिए। तो हमें खेती को ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा, खेती में सिर्फ फूड प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी को रीबिल्ड करना, वाटर सिक्योरिटी बनाना और डाइवर्सिटी को बढ़ाना, ये सब होना चाहिए उसमें। तो मैं ग्रोथ के बारे में कह रहा था, ये क्यों ग्रोथ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। इसमें ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा GDP है। इसमें पर कैपिटा GDP, कुछ हद तक पर कैपिटा GDP बढ़ने से HDI में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ $10,000 के बाद जो है बहुत ज्यादा GDP बढ़ने से भी, पर कैपिटा GDP बढ़ने से भी HDI पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना पर कैपिटा GDP बढ़ाने के लिए धरती पर लोड बहुत होता है। दूसरा ये है उसी तरह के ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक्चुअली हम जितना रिन्यूएबल रिसोर्सेस यूज करते हैं उसको रीजनरेट करने के लिए धरती का कितना एरिया चाहिए। तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वालों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज्यादा होता है। अभी हम HDI और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देखेंगे तो भी इस ग्राफ में 2.1
ग्लोबल हेक्टेयर्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, उसके नीचे के देशों में, इसमें हर एक पॉइंट एक देश है, नीचे देशों में HDI बहुत कम है, लेकिन उसके बाद कुछ देश का बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, लेकिन उनके HDI उसके तुलना में उतना बढ़ता नहीं है। लेकिन उतना बड़ा यानी उतना GDP बढ़ाना या उतना HDI बढ़ाना, सॉरी उतना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ाना एक्चुअली वेस्टफुल है, उससे ज्यादा फायदा नहीं होता है उसमें। यहाँ राइट हैंड साइड एंड में USA, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन लोगों का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। और लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है एक क्यूबा का इस ग्राफ में जो दिखाया है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2.1 से कम है, लेकिन उसका HDI 0.8 जिसको अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माना जाता है, उससे ज़्यादा है। तो इसका कारण ये है कि उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है अपना एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक करने में और उसमें डाइवर्सिटी बढ़ाने में। दूसरा, वहाँ असमानता बहुत कम है। जहाँ असमानता कम है, यानी अगर हम दो देश जिनका पर कैपिटा GDP सेम है उसको कंपेयर करेंगे, जहाँ असमानता कम है वहाँ HDI ज़्यादा होता है। तो रेजिलियंस के लिए, यानी हमारे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये है कि वाटरशेड डेवलपमेंट, तो उसमें सॉइल भी बच जाता है और ग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी कंजर्व होता है, यानी उसको रीबिल्ड कर सकते हैं। जहाँ भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट के उसको रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर तो करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए जहाँ बारिश कम है, और वहाँ मिलेट्स जिसके लिए बहुत कम पानी चाहिए और बहुत वैरायटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर उसी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए और इसमें फार्मर्स की ऑटोनॉमी कम होता है। फिर उसमें क्या है, हमारी डाइवर्सिटी भी कम होता है, सभी लोग वही करेंगे तो। और एग्रो इकोलॉजी जिसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर कह सकते हैं, उसमें प्लांट बायोडाइवर्सिटी, ट्री बायोडाइवर्सिटी, हमारे वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, ये सब एक होलिस्टिक ढंग से देखेंगे तो ये एग्रो इकोलॉजी, इसमें ट्रेन करना चाहिए फार्मर्स को। और इस तरह के फार्मिंग के लिए स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ज़्यादा सूटेबल है। और हमारे लैंड रिफॉर्म्स भी ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा इक्विटेबल लैंड होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और अर्बन गार्डनिंग और फार्मिंग को भी एनकरेज करना चाहिए। दूसरे ये भी कुछ सपोर्ट तो सरकार भी दे सकता है इस तरह के, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिसेमिनेट करने में, और लोकल मार्केट्स बनाने में, फार्मर्स मार्केट वगैरह। और जो लोग अब तक ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड्स की खेती कर रहे हैं, अभी बाद में ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में कुछ साल लगते हैं। उन सालों में उनका प्रोडक्शन कम होता है। तो उस तरह ट्रांसिशन करने वालों को सरकार ये टेम्परेरी लॉस को कॉम्पेंसेट करना चाहिए, उनको एक बेसिक सिक्योरिटी देना चाहिए, नहीं तो वो ट्रांसिशन नहीं हो सकता है। और खासकर बॉटम लाइन ये है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें रिस्क मिनिमाइजेशन की दृष्टि से खेती करना चाहिए। बाद में ये सब की जानकारी बच्चों को और नौजवानों को भी, यानी स्कूल कॉलेजेस में भी होना चाहिए। अभी जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो खेती सिखाते हैं वो कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल है। ये क्यूबा में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, उनको ऑयल जो सोवियत यूनियन से मिल रहा था वो बंद हो गया। अभी हमें भी ग्रेजुअली ये पीक ऑयल का समस्या हर जगह में आने वाला है, लेकिन हमें वो धीरे धीरे ऑयल प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन क्यूबा में ये प्रॉब्लम सडनली आ गया था।
हमें ये ऑयल के शॉर्टेज ग्रेजुअली आएगा, लेकिन हमारी क्लाइमेट क्राइसिस जो है उससे भी ज़्यादा अर्जेंट है अभी। इसलिए जिस अर्जेंसी से क्यूबा ने ये उनका सडन प्रॉब्लम को टैकल किया, उतना ही अर्जेंसी से हमें अभी का क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ 20 साल का समय है। तो क्यूबा ने उन्होंने तय किया कि जब ऑयल इसमें यूएसएसआर से नहीं मिल रहा है, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करना चाहिए। तो उन्होंने डिटर्मिनेशन के से वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उस समय लोगों के एक्चुअली बॉडी वेट कम हो गया था, लेकिन सरकार ने सभी को राशन सप्लाई किया, मिनिमम न्यूट्रिशन सभी को मिला, इसलिए हंगर डेथ्स वहाँ कुछ नहीं हुआ, वो सब प्रिवेंट किया। लोगों को पर्माकल्चर में ट्रेन किया और बहुत सारे ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया, और अर्बन गार्डनिंग, अर्बन फार्मिंग, ये सब के लिए एनकरेजमेंट किया। जहाँ भी कॉमन लैंड है वहाँ खेती और गार्डनिंग करने लगे। फिर फार्मर्स मार्केट, और ये इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव किया, इसलिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी अपना करियर छोड़ के खेती करने लगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी अट्रैक्टिव था और देश के लिए वो एक मिशन था। तो उसके और ये इस तरह के फार्मिंग करने के कारण उनके डाइट में भी बदलाव आया, बहुत वैरायटी आने लगा, ज़्यादा हेल्दी फूड कंज्यूम करने लगे। एक्चुअली वो लोग ज़्यादा वेजिटेरियन फूड भी कंज्यूम करने लगे, क्योंकि पहले जो इंडस्ट्रियल मेथड से हो रहा था उसमें उनका नॉनवेज ज़्यादा था, जो यानी इकोलॉजिकली उतना सस्टेनेबल नहीं है बहुत ज़्यादा नॉनवेज होना। तो हमें अंत में यही कहना चाहता हूँ, क्यूबा को वो प्रॉब्लम सडनली आया, हमें भी एक्चुअली उतना ही अर्जेंसी से इसको टैकल करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें क्यूबा को जिस तरह सडनली वो मालूम भी हो गया उस तरह नहीं आया है, लेकिन अभी हम उसको टैकल करना है। अगर 20 साल में हमारा न्यूट्रिशन यानी कार्बन एमिशन नेट ज़ीरो करना है, तो उतना ही अर्जेंसी से हमें एक्ट करना चाहिए। मैं इतना बोल के यहाँ ख़त्म करता हूँ, मेरा समय भी हो गया है। सभी को बहुत धन्यवाद, और अभी प्रश्न अभी चर्चा करेंगे इसकी। Thank you, Dr. Shri Kumar. That was quite an informative session. And actually, I was keeping my fingers crossed कि internet issue ना आए कुछ, and thankfully नहीं आया issue. So I request our eminent panelists if they want to ask some questions from Dr. Shri Kumar. I would like to request Sri Kumar to share his experience in the personal experience, what are the commune he's been running actually. That will be the interesting to know actually. Okay. Hello. Yes. Yes. Okay. See, I have been living in a commune for the last 13 years. We started it in 2007, and a commune means a place in which people of their own accord come and stay according to the principles of the commune. That means the people who are with us are not with us because they belong to a family, but they are with us because they share some values and aims. What we have stated as our aims are that we, in our lifestyle, we move towards sustainability, right? And actually move towards sustainability in the sense that in an abstract way we'll have to state some aims. That is, we don't use more than our share of common natural resources. Now, saying that is easy, but we don't know how much is our share. So in a practical way, we say with whatever resources we have at our disposal on the land we have. This land was bought using contributions from many people. It doesn't belong to anyone. It won't be inherited by anyone. So for whatever resources, with whatever resources are there at at our disposal, as many people should be able to live as possible. But even that becomes meaningful when many people who opt for this kind of a lifestyle come and join. So most of the time our numbers have not been very large. It has been fluctuating. Sometimes I have also been alone. Once for 3 years at a stretch I was alone. Another time for 9 months at a stretch I was alone. But for most of the time, some people or the other have been with me. Some people have stayed for more than 3 years also. But
the number of people with us rarely has been enough to do all the tasks that our agriculture itself demands. So that is one thing. The other thing is in the process of making our personal lifestyle sustainable, in pursuit of personal purity, I don't want to isolate myself from the rest of society. Living a life of personal purity is okay, it is not bad, but it is not so useful if we don't engage with the society around us. So we have been consciously trying to build relations with our neighbors so that both labor and resources can be shared in the neighborhood. That we have been doing, and in that some success we have had. But the problem is, in our place, very few people are seriously doing agriculture. We don't really have an agricultural economy. A lot of agricultural land is lying fallow, and among people who do agriculture, very few people, there are very few people who don't have any other source of income, right? So they are not doing agriculture seriously. So the scope for sharing this is not much. What we have been doing otherwise is, conducting workshops on sustainability and equity, because we see, when we say, we don't see sustainability and equity as two different issues. So these kind of workshops we've been conducting for the last 5 years, 1, 2, or 3 workshops every year, depending on how much time we have. Yeah, and because I also lecture on sustainability wherever I'm invited, and also take part in other activist programs, I am not able to give all my time to agriculture, and this becomes very bad when I'm alone. That's why in terms of agriculture, I don't say we have been as good as some very good organic farmers, but we are doing agriculture in the context of in a broader context. We are trying to bring more people into the project of sustainability. That's what I would say. I think it was too long an That's answer. nice. Yeah, that's nice. Definitely. Is there any workshop upcoming in the near future, post-COVID time? Actually, we had planned 2 workshops in the month of April. I wanted to do one in Kannada and one in English, 1 week each, but it had to be cancelled because of COVID. Now, next time, I don't know, I will inform you. Okay, sure. Thank you. So, I think we are running out of time. So it has been a productive discussion. Dr. Shri Kumar I think, touched on every aspect of climate emissions, climate change, and how climate crisis is affecting agriculture, how mismanaged agriculture is affecting climate change, how to perform some agriculture activities such that they have a minimal impact on the environment, and the things which we can opt so that our contribution towards climate change is less. And I think particular thing is very important, our contribution. I think presently we all are together because we signed a petition that we will opt some change in our lifestyle so that we have minimum to minimum carbon footprint. And as Dr. Shri Kumar has rightly pointed out, that can only be achieved if we consume less. A proper management of resources should be there. We should consume less. We should consume based on our needs. And lastly, we should guide others to achieve the same. And on this note, I want to ask our panelists if they want to share any last thought on today's session. Okay. So I would like to end today's discussion with this thought that we all are a kind of a community, okay? And if based on our privileges, because of our privileges, we are consuming more, then it somehow impacts the underprivileged or non-privileged part of our society. So we should consume based on our needs only. And I would like to also make an announcement that next Saturday we will have a session on Nagaland issue. Presently, the government is trying to sign up a peace treaty with the Nagaland Socialist Council of Nagaland, among other tribes.
So we will try to understand the root cause of the problem. What is the major cause of the issue? And we will try to understand from NSCN, which is Nagaland Socialist Council of Nagaland Viewpoint. So on this note, I think we can end the meeting. If anyone wants to say anything, they can say. I would, Dr. Sandeep Kumar, if I would request if you want to say the last word. Ankit, I would like to remind everybody that there is a campaign going on where everybody can sign to become part of this campaign to reduce carbon emission. तो उसके बारे में भी आप बता दीजिए कि लोग वहाँ पे कैसे जाके उस लिंक पे कैसे क्लिक करके और उसमें कैसे वो अपना कमिटमेंट दर्ज करा सकते हैं, वो जरा सा आप बता दीजिए. Okay, so there will be a link, एक online petition. So I think we can share that link on the Facebook pages on the below on the description box of the YouTube. So basically the link is about the small changes we can opt in a lifestyle so that we can make a big impact. So आप भी उस movement का part बन सकते हैं by signing onto that petition. ठीक है. So I think on this note, we can end today's discussion. It has been quite a productive discussion, and I really thank all the eminent panelists present here, especially Dr. Shri Kumar, for giving his valuable time, for actually fighting against the slow internet to be with us. Thank you, Shri Kumar. And, Thank you for this opportunity. Thank you. heartfelt Glad to meet you all. Thank you, Sri Kumar. It was a Thank you. So, So we'll be meeting tomorrow also, I think. Yes. Hmm. There is But- Lok Rajniti Manch meeting tomorrow. Yeah, but that will be from my internet connection.